साहिब जी सिखो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। गृह ताज बन खंड जाइए, चौन खाइए कंदा, अजों बेकार ना छोड़ई, अजों बेकार ना छोड़ई, पापी माना मंदा। क्यों छूटों कैसे तरों, भवजल निध भारी, राख राख मेरे बिठुला, जन शरण तुम्हारी। क्यों छूटों कैसे तरों, भवजल निध भारी, राख राख मेरे बिठुला, जन शरण तुम्हारी। रहा बिखै बिखै की बासना, तजी नह जाई, अनक जतन कर राखिए, फिर लपटाई। जरा जीवना जो बन गया, किश कियो नानी का, एह जियरा निर्मोल को, कौडी लाग मिका। कहो कबीर मेरे मातवा, तू सर्वव्यापी, तुम संसार नाही दयाल, मोहे संसार पापी। कहो कबीर मेरे माधवे, तू सर्वव्यापी, तुम संसार नाही दयाल, मोहे संसार पापी। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन अते पवित्र मुबारक हजूरी अंदर बापू कश्मीर सिंह जी तिन्हां दी अंतिम अरदास दे विच शामिल हो रहे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, बहुत सुचज्जा प्रबंध किया है परिवार वालियां ने सतगुरां दी गोद अंदर बैठण दा। सुआओ जिथे सतगुरां की बाणी के नाल आपां सांझ पाई है, उत्थे बाणी ते राही उपदेश द्वारा भी अपने जिंदगी नूं आधार बना के सतगुरां दे कहे मुताबिक जिंदगी बतीत करन दा जिहड़ा राह है उहदे पांधी बन सकीए। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला समुची संगत दोवें हाथ जोड़ के इक्के बार कहण ते गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस पावन शब्द का पाठ हुणे आपां सरवण कीता है, ये पावन शब्द राग बिलावल अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 855 उपर सुभायमान है।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟਾਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੂਟਾਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ। ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬਿਠੁਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਿਠੁਲ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਵੈ ਪਰਚੋਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਹੈ ਨਿਆਰਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾ ਇਨਕਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਕਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਕਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਆਨੰਦ ਪੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੁਗਤ ਆਨੰਦ ਪੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਜੋ ਮਰ ਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਟ ਤਹਲੂਆ ਤੁਰੰਤ ਬਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਟ ਤਹਲਵਾ ਤੁਰੰਤ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਵਤ ਨਾਹੇ, ਗੰਗਾ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਵਤ ਨਾਹੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ
कि जदों सिख दे घर मृतक प्राणी हुंदा है, उहदे फुੱਲ हुंदे ने जिहड़े अस्त हुंदे ने, उहदियां हड्डियां ने, वो ना तो कीरतपुर साहब जाके पाउणियां ने, ना ही किसी हरिद्वार गंगा किसी भी धार्मिक हिंदू स्थान के उपर जल प्रवाह नहीं करनी। कोई लागे कोई पानी वगदा है, वगन वाला चलदा पानी है, उहदे विच सारी राख इकट्ठी करके उहदे विच सुੱਟो। ये भरम नहीं करना कि ये हड्डियां ही चुनिया जान, जिहड़ी जिन्नी भी सवाह है, जिन्नी भी राख है, सारी इकट्ठी करके वो वगते हुए पानी दे विच सुੱਟਣੀ है। जे पानी का प्रबंध दूर है तो जिथे संस्कार किया गया है उत्थे ही जमीन के विचों कुछ टोआ पुट के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ के ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ बराबर कर ਦਿੱਤਾ जाए। ये सिख रहत मर्यादा अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ पंथ प्रमाण ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है। कोई भरम नहीं करना कि असी जिन्ना चिर हरिद्वार जाके अपने अस्त ना बहाए, अपने किसी रिश्तेदार दे, अपने साक संबंधी दे हो सकदा उन्हें मुक्ति ना मिले, इहो जिहा भरम सिख दे अंदर नहीं। किरिया कर्मा करावत नाहे, गंगा हड्डियां पावत नाहे, करत दुसहरा ग्रंथ पढ़ावत। फिर कहते 10वें दिन पाठ इन्हां दा रखिया जाता है, अपने गुरु की बाणी पढ़ी जाती है, उसका भोग मरण वाले प्राणी के दिन तो लैके 10वें दिन पाया जाता, उन्होंने दशहरा कहा जाता। करत दशहरा ग्रंथ पढ़ावत, अन्न बसन गरीबन को दियावत। अन्न खाना, बसन बस्तर कपड़े इत्यादि कहते गरीबों के वंडते हैं। जो मृतक प्राणी चढ़ाई कर जाता है, ਉਹਦੇ कपड़े होण ਜਾਂ कोई अन्न पानी होवे, वो सारा ये गरीबों के वंडते हैं। पर अज पिरत की है, ब्राह्मण ने रीत पाई सी कि जदों भी प्राणी चढ़ाई कर जाता है तो ਉਹਦੇ कपड़े ਜਿਹੜਾ दूजा घर वाला जीव नहीं पा सकता। उन्होंने पता सी कि जे घर वाला जीव कपड़े पाएगा तो ये तो मैनू तो कुछ नहीं मिले ये। जो मैं इन्हां ते भरम पा देवांगा कि यह तो अपशगन होंदा है, तुहाडे लई बहुत बुरा होंदा है, तुसीं मर चुके प्राणी के कपड़े पाओगे, तो इन्होंने ऑटोमैटिक मैनू पूछना है कि जे असी नहीं पाने, ये साडे काम नहीं है कपड़े, असी कित्थे दईए। तो उदों मैं कहांगा ये मंदिर नूं दान दे दिते जाण, ये मेरे को दान दिते जाण, मैं आपे ही इन्हां दा प्रबंध कर लवांगा। उन्हें एक उन्हें बिजनेस बनाया सी, बिजनेस टाइप गल की सी। पर अज धोतियां बोदियां वाले ब्राह्मण तो गए, अज पग्गां वाले ब्राह्मणों की वारी आ जाती है। जदों यही रीत उन्होंने उपर लागू होंदी है, उदों पग्गां बन के जदों ये भरम पाउंदे ने, ये तुहाडे काम दे नहीं है, ये जो बोरी बिस्तरा है, मंजा तक, जुत्ती तक, सब कुछ गुरुद्वारे नूं दान कर दो। गुरुद्वारे दान करना माड़ी गल नहीं है, पर जो भरम दे विच असीं करदे हां ना, उदों किते ना किते गुरु के सिद्धांत तो असीं कोहां दूर चले जाते हैं। गुरु तो कहता जिन्हों लोड़ है उन्होंने जाके दे कपड़ा, वो जिहदे तन ते कपड़ा नहीं है, गरीब के तन ते कपड़ा पा। जे तू घर दे विच भी मरे हुए प्राणी के कपड़े वरत लवेगा तां भी भरम नहीं है, तेनों आके चंबड़ नहीं जाएगा। वो तो वरतदे ही सन पईआं, पर अज भरम है, ज़्यादा भरम तो साडियां भैणां नूं पिया हुंदा है। जदों असीं मृतक प्राणी का संस्कार करके आउंदे आ, बंदा भावें कहंदा रहे कि कोई नहीं, मैं नहाउण दे नाल की हो जाना है कि मैं जदों उत्थे संस्कार करके आ फिर की होया, मैं सवेरे नहा लवांगा, मैनू की हो गया। पर कई बार तो बीबियां घर दे विच कहंदियां ने, ना जी नहाओ, तुसीं संस्कार ते गए सी, मगर गए सी, नहाओ, किते कोई बुरा भाणा ही ना वापर जे। इशनान करना भागा वाले माड़ी, इशनान का संबंध शरीर नाल है, मन नाल नहीं। पर जो भरम पाया जाता है उदों फिर किते ना किते गुरु के सिद्धांत तो असीं कोहां दूर चले जाते। रतन सिंह भंगू लिखते हो, कहते ये अन्न बसन गरीबों को देंदे ने, जिन्होंने लोड़ है उत्थे देंदे ने। अन्न बसन गरीबन को दियावत, कंठी जंजू तिलक न तरह, बुत परस्ती ना कबहू कर है। ना तो जंजू धारण करते हैं,
ना ये तिलक धारण करते हैं तो ना ये बुतों की पूजा करते हैं। पर अज तुसीं झात मार के वेखना, मैं कई बार हैरान होंदा भागां वालिओ, जदों किसी के घर विआह का प्रोग्राम होंदा है ना, शगन का प्रोग्राम, तुसीं तां वेखिआ, मैनूं बहुत बार वेखण का मौका मिलिआ, मैं हैरान होंदा है कि हिंदू धर्म की रीत है तिलक लाउणा। हिंदू धर्म के विच रीत है कि उन्होंने मत्थे ते तिलक लाउणा है। जो भी उन्हों का प्रोग्राम होंदा, खुशी गमी का होवे, जिहड़ा मर्जी होवे, वो तिलक लाया जाता है। पर किन्ने कमाल की गल है, सिखां दे बच्चों के विआह होण, सिखां दे पुत्रां दे आनंद कारज होण, ते गुरु की हजूरी के अंदर सामने बिठा के वो मत्था तां पग नाल ढकिया हुंदा, पर वो जदों रीत की जाती पग के उपर ही तिलक ला दिता जाता है। वो भागां वाले जिहड़े गुरु ने तिलक धारियां तो मना किया होवे, जिहड़ा गुरु कहता होवे इन्हां तिलकां नाल कुछ नहीं बनना, ना कुछ बनया है। अज वो सिख गुरु के सामने हो के, मैं कहना कई बार तो गुरु नूं मखौल नहीं है, जिहड़ा गुरु विवर्जित कर रहा होवे जिन्हां चीज़ों तो उही काम असीं गुरु के सामने बैठ के करिए, तो मैं समझदा बहुत वड्डा मखौल है गुरु। सतगुरु तो कहते रामदास सोटी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। और जो तिलक देना है तो गुरु के शब्द का तिलक दो, गुरु के शब्द की गुड़ती दो उन्होंने। पर गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी दे विच सामने बैठ के बच्चे की पग ते तिलक लाया जाता है, कित्थों की रीत है? असी तो मैं समझदा असी तो ब्राह्मणों नालों भी गए गुजरे हैं, उन्होंने तो मत्थे की रीत सी कि मत्थे ते तिलक लाउणा, साडा मत्था नहीं दिखता, असी पग्गां ते लाउणा शुरू कर दिता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही कोई गल बन जाए, तिलक तो बिना शगन नहीं लगते। गुरु का आशीर्वाद जरूरी है कि भरमा रूपी तिलकों की जरूरत है। वो लिखता कहता कंठी जंजो तिलक ना धर है, बुत परस्ती ना कबहू कर है, एक रब की करत बंदगी रखत ना और नकी मशंदगी। एक रब की बंदगी करते हैं, किसी होर अगे हाथ नहीं अड्डते। वेद कुरान कतेब कुरान, पढ़त ना सुनत ना मानत कान। ना तो हिंदुआं के वेदां का पाठ करते हैं, ना ये पुराणा का पाठ करते हैं, ना ये मुसलमानों की कुरान नूं मनदे आ। कहंदा करते की ने, ये करते की ने? ना तो वेद का पाठ करते हैं, ना ये पुराण पढ़ते हैं, ना ये कुरान पढ़ते हैं, ना ये गीता नूं मनदे ने। करते की ने? वेद कुरान कुतेब कुरान, पढ़त ना सुनत ना मानत कान। गुर नानक जो कथी कलाम, जेड़े गुरु नानक ने कलाम कथी है, कलाम लिखा है अपनी लफ्ज़ां दे विच। जेड़ी गुरु नानक ने बाणी लिखी है, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, तां पर रखत ईमान तमाम। कहता वो अपना ईमान रखते हैं, सारा विश्वास वो रखते हैं। जी गुरु नानक की कलाम है ये वो तो बिना किते नहीं जाते, ये उन्होंने मानते हैं। इस करके तो इन्होंने बंधनों के नहीं पे, इस करके तो इन्हों फसे नहीं है। जेड़े गुरु नानक की कलाम के उपर विश्वास नहीं करते, वो तो अपने आप छिड़क के इन्हों पे, वो फिर गरुड़ पुराण की रीत भी करनगे, वो फिर वेदां की रीत भी करनगे, वो फिर गीता नूं भी मनणगे। मैं किते किते हैरान होंदा है कि असीं मनदे गुरु ग्रंथ साहब नूं हाँ, पर कर्म सारे ही गरुड़ पुराण ग्रंथ वाले करते हैं। श्राद्धां की गल होवे, वर्त रखण की गल होवे, मनदे गुरु ग्रंथ साहब नूं हाँ, पर जेड़ी मानते हाँ वो गरुड़ पुराण ग्रंथ है, वो पुराणा की मानते हाँ, वो सिमरतियां की मानते हैं। वो उल्ट हो गया ना, सारा सिस्टम ही उल्ट कर दिया। गुरु नानक जो कथी कलाम, तां पर रखते मान तमाम। प्रेत पीड़ गृह पीड़ ना मानत, मड़ी मसाणी को ना पछाणत। ना तो प्रेतां नूं मनदे ने, ना इन्हां नूं पता ही नहीं भूत की हुंदे ने, ये मनदे ही नहीं भूतां नूं। ये तो वो भूत मनदे ने जिहड़े बंदे जिउंदे जागदे भूत बने हुए ने।
ये नहीं मानते कि मरण तो बाद बंदा भूत मानता, ये जिउंदियां नूं भूत मानते हैं। जिहड़ा बच्चा अपने बाप नूं नहीं सामभदा, जिहड़ा बच्चा अपनी माता नूं नहीं सामभदा, ये उन्होंने भूत मानते हैं। ये भूत ने असल में। जिहड़ा भरा भरा दा वैरी बनया, जिहड़ा अपने माँ बाप का वैरी बनया, ये उन्होंने भूत मानते हैं। ये नहीं मानते कि मरण तो बाद बंदा भूत मानता, ये कहते जिउंदे जी आ भूत ने तुहाडे सामने। जिहड़ा गरीब नाल धक्का कर रहा है, जिहड़ा किसे दे मूँह दे विचों निवाला खो के अपने बच्चों को बड़े बड़े जैलदार बना रहा है, उन्होंने भूत मानते हैं। प्रेत पीड़ ग्रह पीड़ न मानत, मड़ी मसाणी को ना पछाणत। ना ही किसी मड़ी कबर नूं जानते हैं। ये लागों की लंघते सिर नहीं झुकाउंदे। पर अज वेखो अज की हो रहा है। अज जिन्हां की तारीफ कर रहे भाई रतन सिंह भंगू, अज दे सिखां की तारीफ है। अज आके वेख मालका, अज तो हरे रंग वाली कंध लागों भी लगन लग्या तेरा पग वाला सिख सिर झुका दिंदा है। पग वाला सिख वो इन्नी भी कदर नहीं करता कि मेरे सिर ते जिहड़ी पग बजी है मेरी नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह की पग है। वो इन्ना भी नहीं पता, हरा रंग वेहदिया सारी जिथे हरा झंडा लगा उस वेले ही सिर झुका दिता। वो इन्ना भी नहीं सोचा भरावा तेरे सिर ते बजी हुई पग गुरु नानक की देन है, तेरे सिर ते बजी हुई पग धन गुरु गोबिंद सिंह की देन है। अज आके वेख मालका, सारा सिस्टम ही बदल गया। पगां वाले माफ करना, अज के हालात ऐसे बन चुके ने। चौधरा सानू भावें गुरुद्वारियां दियां मिलन, भावें बड़ियां कबरां दियां मिलन, भावें किसी भी धार्मिक अस्थानां दियां मिली जाण, असीं लैण नूं तैयार हुंदे हां। पर जदों गुरु के ज्ञान की गल आउंदी है, जदों गुरु के सिद्धांत की गल आउंदी है, असीं कन्नी खिसका के पिछे नूं हट जाते हैं। सानू की लेना, बड़े लोग करते हैं। मैं कई बार हैरान होंदा, मैंने पुछदे ने लोग। मैं कई टीवी चैनलों के उपर बोल के आया, मैं बड़ियां की जदों गल करदा, मेरे कई फोन आउंदे ने, कहते ज्ञानी जी ये तुहानूं कोई पीर पैगंबर टक्करिया नहीं। मैं कहा क्यों? कहंदा तुसीं ते इन्हां बारे उल्ट बड़ा बोलदे जे। मैं कहा उल्ट की बोला, मेरा बाबा मैनूं कह के गया है, इन्हां दी असलीयत दुनिया के सामने लिया के रख दे, दुनिया को पता लगे। गुरु नानक का सिद्धांत है, गुरु की विचार है, सच का सिद्धांत है, दुनिया को पता लगे। ये दुनिया सीधे राह ते तुर पवे, झूठ नालों टुट के सच के सिद्धांत पर आ जाए। मैं तेरे मगर थापी दे के खलोता है। असी बोली तो इन्हें पीरां दियां कबर आउंदियां ने, गड्डी उस वेले गांह लै जाईदी है, कोई परवाह ही नहीं है सिर झुकाउण दी। पर आम बंदे के मन च भरम डर, असी मत्था टेक के जाइए, किते बाबा अगले पासे पीर ही ना खलोता होवे, किते नाराज ही ना हो जाए। मैं कहना भागां वाले, जिहदा सच विश्वास गुरु ग्रंथ साहिब ते उन्होंने दुनिया का कोई पीर पैगंबर जो मर्जी कह लो, कोई वह वाल नंगा नहीं कर सकता, कोई उहदे अख चुक के नहीं वेख सकता। पर कित्थे अज दे सिख, वो जेड़े दादू की कबर ते गुरु गोबिंद सिंह तीर दे नाल अपना सिर झुका दिंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह की बांह फड़न वाले भी सिख सन। सतगुरु जी पर सानू कहंदे ना पीरां कबरां ते सिर झुकाउण नाल कुछ नहीं होएगा। अज तुसीं सिर झुका रहे हो। सतगुरु कहंदे भाई दया सिंघा, वो मेरे प्यारे सिखो, मैं तुहाडा इम्तिहान लै रहा सी। और जेड़े सिखां नूं इन्ना कुछ दसिया, जेड़े सिखां नूं इन्नी विचार समझाई, मैं परख कर रहा सी कुछ इन्हां दे पल्ले है भी है कि नहीं, कुछ इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर वसाया भी है कि नहीं। कि जे मैं गलती कर लवां तो तुसीं भी मेरे मगर सिर झुकाओ। मैं वेखना चाहुंदा सी कल तो तुहाडा वड्डा बजुर्ग भी गलती करे, तुसीं अपने बापू की बांह फड़ो, बापू वो पीरां दे सिर झुकाउण वालिया तूं गलत है। भावें तुहाडा वड्डा बजुर्ग गलती करे, तुहाडी बेबे गलती करे, तुहाडा वड्डा परिवार का जी गलती करे, उसकी बांह फड़ के कह सको तुसीं इस विचारधारा से गलत हो। गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी इसनूं बिल्कुल तरजीह नहीं दी। पर जब अज आके महाराज वेखण, उस वक्त सिखां ने महाराज बांह फड़ी मेरी, मैं उस वक्त इम्तिहान लै रहा सी, मेरी बांह फड़ी। अज मैं आके वेख रहा केदी मालका बांह फड़ा।
किनू किनू कवा ना सिर झुका, इत्थे किनू किनू कवा। ये तो सानू अपने आप को स्वै पड़चोल करनी पएगी ना, कित्थे असीं गलत हाँ। प्रेत पीड़ गृह पीड़ न मानत, मड़ी मसाणी को ना पछाणत। गंगा दिक तीर्थ नह जावे, ना तो किसी हिंदू धर्म के तीर्थों से जाते हैं। सूतक पातक नाहे मनावे, तो ना ही सूतक पातक मानते हैं। सूतक पातक की है? ब्राह्मण ने एक भरम पा दिता कि ब्राह्मण के घर जो मौत होंगी है तो 12 दिन अशुद्धि रही है। 12 दिन वो घरों ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है किसी ने। जो खतरी के घर मौत होंगी है तो 13 दिन अशुद्धि रही है। जदों वैश्य के घर मौत होंगी है तो 17 दिन अशुद्धि रही है, वो घरों 17 दिन खाना पीना नहीं है। जदों शूद्र के घर मौत होंगी है तो 1 महीना 30 दिन वो घर अशुद्धि रही है, वो घरों कुछ नहीं खाना पीना। जदों बच्चा जन्म लेंदा है उस तो बाद भी ब्राह्मण के घर 12 दिन, जदों खतरी के घर होंदा है, वैश्य के घर होंदा है, शूद्र के घर होंदा है, इस तरह उन्हें वर्णमाली की हुई सी। ये सूतक पातक है, ये सूतक है। गुरु नानक साहब ने आसा की वार अंदर इहो जे ब्राह्मणों का भरम जिहड़ा सी दुनिया के सामने पाज उगाड़ के रख दिता कि इन्हां तो बचो। जे अज साडे सिख घर ने, मैं तो कई सिखां दे घरां दे विच वेखिआ, कहंदे जिहदे घर मौत हो जाए तो घरों पानी नहीं पीना। क्यों? जे पहला पानी पी सकदा, हुण तैनूं की होया? इहदे घर बच्चे ने जन्म लिया, ये घरों इन्ने दिन पानी तक नहीं पीना, ये घर नहीं जाना इन्हें। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना? तू सिखां दा पुत है, सिख परिवार में जन्मिया होया है, गुरु ग्रंथ साहब को अपनी टेक मानदा है, तू क्यों सूतक पातक पर विश्वास करदा है? सूतक पातक पर जे विश्वास करना, आ सूतक पातक लै। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। मन का सूतक लोभ, लोभ तो अशुद्धि करना, तू कि लोभ अशुद्ध होंदा, इनू छड्ड। इनू 12 दिन नहीं छड्डना, ना 13 दिन छड्डना, ना 1 महीना छड्डना, इनू सदा दी जिंदगी चों त्याग दे, सदा। मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना, पर त्रे पर तन रूप। कन्नी सूतक कान पै, ला इतबारी खाहे। नानक हंसा आदमी, बदे जामपुर जाए। इन्हां चीज़ों तो त्याग कर, लोभ त्याग, कूड़ त्याग, झूठ बोलना छड्ड, वो बेईमानी छड्ड, पराया रूप तकना, इन्हां चीज़ों को छड्ड। इन्हां क्यों नहीं छड्डदा? इन्हां चीज़ों को त्याग। आ जिहड़े सूतक पातक जिहड़े दिनां दे बनाए हुए ने, ये तो भरम हिंदू रीत के भरम ने, सिखां नाल इन्हां दा कोई संबंध नहीं है। ज्ञानी रतन सिंह भग्गू अगे लिखदा है, वो कहता सूतक पातक नाहे मनावे, बोधी धोती तुलसी मालै। होम शराध ना ख्या संभाले, ना तो बोधियां रखते हैं, ना ही धोतियां पाउंदे ने, ना ही हाथ में माला फड़ते हैं, ना ही होम जग करते हैं, ना ही शराध करते हैं। पर अज भी हो ही रहा सिखां के घरां च। गुरु नानक साहब दीयां माला वालियां तस्वीरां साडे सामने लिया के रख दित्तियां। उन्हां फोटोआं वल वेख के सिख समझण गुरु नानक साहब ने तस्वीर दे विच माला फड़ी, असीं भी अपने घरां च माला फेरीए, असीं भी माला फेरीए। पगां वालिओ, तुहाडे विच सूझवान बैठे ने, तुहानूं पता होएगा गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी बिल्कुल माला की मनाही करती है, बिल्कुल। हिंदू धर्म की रीति होएगी, मुसलमान में उत्थे फेरन की रीति होएगी, पर सिख धर्म में माला की तस्वीरां तो साडे बंदियां ने बनाईयां ने, मनोकल्पित तस्वीरां ने। जिहदी जिहो जी सोच सी उन्हें गुरु नानक साहब की दस्तार से भी माला पा दी, दूजे ने होर वध कीता, उन्हें 4-5 माला हाथ च पा दित्तियां, गले च पा दित्तियां।
ਮਨੋ ਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਧੀ ਧੋਤੀ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲੈ, ਹੋਮ ਸ਼ਰਾਧ ਨਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛਕਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਹ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਬੇਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੂਹੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਪੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੁਕਰ ਖਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਓ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਬੇਬੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਕਵਾਨ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਿੰਜ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੇਬੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਬੇਬੇ ਉੱਤੇ ਤੜਫਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੇਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ये टीका भी तुहाडे ही लगेगा। जे बेबे का ढिड खाने नाल उत्थे भर सकता है तो टीके नाल बेबे भी। मैं कहना बेबे मरी के दोहरी वार ना मर जाए, मैं टीका ला ही देवां तुहानूं, टीका भी पहुँच जाएगा उत्ते। ब्राह्मण कहता ना भरावा हथ जोड़े, खाना खुना किते उपर नहीं पहुँचता, तो साडे लिए है, साडा रोजगार है, असीं खाने कदी किसी के घर कदी किसी के घर। इन्हां वहमां भरमां तो गुरदेव पातशाह जी ने सिख नूं परे रखे। ये सिख ने नहीं पैना इन्हां शराधां दे विच, ते इन्हां चीज़ां 'च असीं फसे हुए। जिहड़ी गल बाबे कबीर ने की, क्यों छूटों कैसे तरों भवजल निध भारी, राख राख मेरे बीठोला जन शर्म तुम्हारी। इन्हां 'च फसे हुए हैं। इन्हां दे विचों किवें छुटांगे? जो गुरु ग्रंथ साहिब की शरण आवांगे, एक सच्चाई के अधीन होकर अपनी जिंदगी नूं बसर करांगे। तो बाबा कबीर जी अगे कहते गृहता च बंदे ने घर छड्ड दिता, बन खंड जाइए जंगलों च चलिया गया, चुन खाइए कंधा। उत्थे जो कंधा कहते हैं, असल दे विच कई बार कंधा पत्तियां नूं लफ्ज प्रचारिया जाता कि पत्ते खाने शुरू कर दिते। मैं भाई कान सिंह नाभा नूं पढ़ रहा सी, उन्होंने कंधा के कंध मूल के अर्थ किए ने। कहते कंध मूल वो चीज़ है जिहड़ियां धरती चुकदियां ने तो उहदे पत्ते उपर हुंदे ने, जिवें मूली शलगम इस तरह दी चीज़ां उन्होंने कंध मूल च लिखे। कहते घर त्याग दिता, जंगलों च चलिया गया, तो जंगलों च जाके कंध मूल खाना शुरू कर दिता। गृहता च बन खंड जाइए चुन खाइए कंधा, अजों बेकार ना छोड़ई पापी मन मंदा। कहते घर ते आ गया सी कि बेकार छड़ देगा, परिवार भी छड्डिया जाएगा, मोह त्यागया जाएगा, लोभ त्यागया जाएगा। जदों जंगल च गया मोह भी नाले है, त्याग कित्थे त्यागया है, परिवार की फिक्र भी है। अजो बेकार ना छोड़ई पापी मन मंदा, बिखै बिखै की बासना तजी नह जाई। वख वख विषयां विकारां की वासना कहते तजी ना जाई, छड्डी नहीं जाती। अनक जतन कर राखिए, अनेकां जतन करके बचा किया। कहते फिर लपटाई, फिर आके लपट गई। बड़ा सोचा, लोभ त्याग दिता, काम त्याग दिता, जदों घर चों पैर बाहर पुटिया फिर लोभ आ गया, फिर काम आ गया, फिर तृष्णा आ गई। अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई, जरा जीवन जो बन गया। जवानी भी चलेगी, बुढ़ेपा आ गया। किश कियो ना निका, कहते कुछ चंगा नहीं किया। जवानी चलेगी, बचपन चलिया गया, बुढ़ेपा आ गया, पर कोई चंगा काम नहीं किया। किश कियो ना निका एह जीरा निर्मोल को, यह निर्मोलक ही हीरे वर्गा शरीर, ये जीवन कौडी लगमी का। जो कौडियां दे नाल लग्या, ये भी कौडियां वर्गा बराबर बन गया। मीका का मतलब बराबर। कौडी लगमी का कहो कबीर मेरे माधवे, तू सर्वव्यापी। हे मेरे माधवे, बाबा कबीर जी कहते तू सारिया थावां ते वसिया है। तुम समसर नाही दयाल, मोहे समसर पापी। मालका तेरे वर्गा दयाल कोई नहीं है, ते मेरे वर्गा पापी कोई नहीं है। तेरे वर्गा दीन दयाल दुनिया को बख्शण वाला कोई नहीं है, ते मेरे वर्गा पाप करने वाला लोभी तृष्णा विच फसिया होया कोई नहीं है। मालक जी तुहाडी शरण विच आए हाँ, सानू बख्श दो, सानू इन्हां विकारां दे विचों कढ के इन्हां विचों छडा लो। ये भवजल भारी है, ये संसार समुद्र विकारां दा देन है, इहदे विच पखंड है, भरम है। हर बंदा आके आपो अपने विचार दसदा है। मालक जी इहदे विचों बचा लो, होईयां भुलां दी खिमा। लफ्ज सतगुरां दे जान के अपने हिरदे अंदर वसाउणे। परिवार दा धन्नवाद, समूह संगत दा धन्नवाद, कोटन पतान धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जो आप संगतां दे दर्शन करवाए। बुलाओ फतेह आखो जी।